Hello, good morning, students. Today I am taking up the topic sales promotion. It's although it's a very simple thing, you all must have come across the process of sales promotion. But this is very important part of promotion. We know there are 4 P's of marketing mix: product, price, place, and promotion. So, first of all, let us see what is the difference between promotion and what is sales promotion. Why do we call it sales promotion? For that, we need to understand first what is promotion and what are the different kinds of promotion. Then it will be very easier for us to understand what is sales promotion. So, promotion is the process of marketing communication to inform, persuade, remind, and influence customers or users in favor of your product or service. मीन्स प्रमोशन का मतलब क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर एक अपना प्रोडक्ट लेके आता है तो सबसे पहला उसका काम होता है कि प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है। एंड नॉट ओनली दैट, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो दूसरों के पास भी है, बट हमारा प्रोडक्ट उससे डिफरेंट क्या है, उससे बेटर क्यों है। और ये आपको जब तक नहीं समझाएगा, जब तक इन्फॉर्म नहीं करेगा, तब तक यू वोंट बी एबल टू know about the product. You will not have any information. Since you don't have any information, there is no question of going for it. तो यहाँ प्रमोशन का यही काम होता है कि प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस करना, आपको उसके क्वालिटीज़ के बारे में बताना, कंपटीटर्स से डिफरेंस क्या है उसके बारे में बताना, उसके बाद आपको अट्रैक्ट करना, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको तैयार करना, मेंटली साइकोलॉजिकली आपको तैयार करना, और फाइनली इन्फ्लुएंस करना टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो ये काम है प्रमोशन का। तो प्रमोशन जो है, प्रोडक्ट का प्रमोशन जो होता है, इट हैज़ 3 स्पेसिफिक पर्पसेस। जैसा कि अभी मैंने कहा, कम्युनिकेशन में क्या है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन देना है। कैसे हम इन्फॉर्म करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस अंडर दिस हेडिंग। तो उनको द फर्स्ट जॉब इज टू कम्युनिकेट टू द कंज्यूमर्स एंड रीसेलर्स। प्रमोशन persuades and convinces the buyer and influences him or her behavior to take the desired action. Desired action क्या होगा कि वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो। So what are the 3 things you have done? You have communicated, means you have given information about the product, you have persuaded him or influenced him to buy the product. So on the basis of this, we can say promotion has been defined as the coordinated, self-initiated effort to establish channels of information and persuasion to facilitate or foster the sale of goods or service or the acceptance of ideas or points of views. आपका जो भी, या तो प्रोडक्ट है, सर्विस है, आइडियाज है, जो भी है, उसको थ्रू चैनल्स यू नीड टू इन्फॉर्म टू द कस्टमर्स। तो इसीलिए अब ये जो प्रमोशन है, इसके अंडर में, अंडर मार्केटिंग मिक्स वी हैव सीन 4 इंग्रेडिएंट्स:
प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर में भी हमारा 4 इंग्रेडिएंट्स है। फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, यू ऑल नो दैट। पब्लिसिटी, you know that. Third is personal selling, and the fourth one is sales promotion. This is our topic today. Now we know that sales promotion is a part of promotion. It is one of the 4 ingredients of promotion. Sales promotion is a part of promotion. So let us just revise once. What are the other 3? The first one is advertising. Means advertising may be defined as any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, services by an identified sponsor. It is impersonal selling. For mass selling, a means of mass communication. एक साथ बहुत सारे लोगों, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए टीवी में हम लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो वो दैट इज एडवर्टीजमेंट. द मैन्युफैक्चरर pays for it. So advertising is a पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल. वो किसी एक आदमी के लिए टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं आता है. जितने लोग टीवी देख रहे हैं वो सबके लिए आता है. नाउ इट डिपेंड्स हाउ मेनी ऑफ देम यू कैन अट्रैक्ट. ये हो गया एडवर्टीजमेंट. सेकंड इज पब्लिसिटी. पब्लिसिटी इज नॉन पर्सनल स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, सर्विस और ए बिजनेस unit by placing commercially significant news about in a publication or obtaining favorable presentation of it upon radio, television or a stage that is not paid for by the sponsor. इसमें क्या होता है कि पेमेंट, sponsor is not paying. This is also non-personal, but since it's a non-paid form, for this you can take the best example. अभी जो कुछ शोज, रियलिटी शोज टीवी पे चलते हैं, सिंगिंग के, डांसिंग के, द कपिल शर्मा शो फॉर एग्जाम्पल, what happens, the actors, the actresses, the directors, the producers of the film, they come and promote their film. They are not paid for promoting that film. So this is publicity. Third one is personal selling. You know, personal one-to-one interaction, insurance agents, or some products like vacuum cleaner, or these things which one-to-one convincing and personal selling is done. And now the fourth one is sales promotion. All these activities of advertising, publicity, personal selling, after all these activities, the additional, the extra that is done to promote a product or a service or a goods or ideas, that comes under sales promotion. So we can say sales promotion. All forms of promotion try to influence customers' attitudes, beliefs, ways of living or lifestyle, value, preference towards a company. What are the 4 squares of promotion? The first is product, because you need to advertise for the product. The buyer, because it's the buyer who will purchase your product. The company, which is manufacturing or producing, and the channel. So now sales promotion is a necessity and not merely a luxury. It is not an expenditure, it's an investment which can pay rich dividends. Because advertisement आपने कर लिया, publicity कर लिया, सब हो गया, but उससे क्या होता है, नॉर्मली द कस्टमर गेट्स
information, gets accustomed about the product, but it's not sure that he will be purchasing that product or not. तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज हम लोग जो टेकअप करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कस्टमर्स के ऊपर में. दैट इज वाई दिस एक्स्ट्रा एफर्ट दैट is undertaken is called sales promotion. It is referred to the promotional activity other than personal salesmanship, advertising and publicity. Advertising, publicity, personal salesmanship छोड़ के बाकी जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट और आइडिया, that is sales promotion. Is it clear? Okay. Now, it is referred to the promotional activity other than personal salesmanship, advertising and publicity, which stimulates consumer purchasing and dealer effectiveness. That is displays, exhibitions, show, demonstrations, free samples. ये सारा हम वन बाय वन डिटेल में वी विल बी डिस्कसिंग. तो ये सारा एक्टिविटीज जो है दीज ऑल आर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज. इट इज अ प्लस इंग्रेडिएंट. प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी और पर्सनल सेलिंग के बाद जो एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाते हैं, तो इट इज अ प्लस इंग्रेडिएंट इन द मार्केटिंग मिक्स, whereas advertising and personal salesmanship are essential and basic ingredients in the marketing mix. अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कंपनी में, तो until and unless you give the information to the customer, the customers will not be able to buy it. They will not be having any information, so they will not be buying it. तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी वो तो नेसेसरी है ही, एसेंशियल है, बट उसके बाद उसका सेल्स को और प्रमोट करने के लिए दिस सेल्स प्रमोशन इज रिक्वायर्ड. दिस सेल्स प्रमोशन इज अ वाइटल लिंक बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड फील्ड सेलिंग. एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया आपने, टीवी पे कर दिया, 1 करोड़ लोगों ने देख लिया, बट उसमें से कितने ने परचेज किया यू डोंट नो. कितने परचेज के लिए तैयार हुए यू डोंट नो. ये पता चलता है जबकि मार्केट में रिटेलर के पास में आप सेल्स प्रमोशन करते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो दैट इंक्रीजेस द सेल्स. अभी वी विल डिस्कस दैट इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. So it aims at stimulating consumer purchasing at the point of sale and dealers' effectiveness at the retail channel of distribution. Particularly, retailing is a highly competitive field. ठीक है, तो I think it's clear now what is sales promotion. Anything that is done to increase the promotion of product or goods other than advertising, publicity and personal selling is all sales promotion. The objective of sales promotion is increase sales volume. कैसे? Attract new customers by informing them, by persuading them, by influencing them, as we have already seen, and retain existing customers. जब नए बढ़े होंगे और साथ में पुराने वाले भी ऐड होंगे, तभी हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा, तभी हमारा सेल्स इंक्रीज होगा. नाउ स्पीड अप सेल्स ऑफ स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स. कभी कभी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट सेल्स इज नॉट दैट not that much selling. So वहाँ पे क्या है, सेल्स प्रमोशन वहाँ पे
हेल्प करता है. चेक फ्लक्चुएशंस इन सेल्स. सो अगर अचानक कोई प्रोडक्ट का सेल कम हो गया तो क्यों कम हो गया वो फाइंड आउट करना, उसके लिए कोई एक्टिविटी डिजाइन करना. दिस इज ऑल डन इन सेल्स प्रमोशन. Encourage repeat purchase. To retain existing customers, repeat purchasing has to be done. तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल कि नेस्कैफे कॉफ़ी का जो वो जो शीशी आती है, बाय वन गेट वन फ्री. जिलेट गार्ड रेजर्स, बाय थ्री गेट थ्री फ्री. So these are to increase the sales volume. Clearance of excessive inventories. मार्केट में अगर पूरा सेल नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो गया, स्टोरेज की कमी है, पैसा लगा हुआ है बट रिटर्न नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, एंड ऑफ सीजन सेल, ऑफ सीजन डिस्काउंट एंड ऑल दीज थिंग्स करके उसको निकालते हैं. तो क्लियरेंस ऑफ एक्सेसिव इन्वेंट्री इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. मोटिवेट डीलर्स टू purchase and resell the company's product. Encourage dealers to participate in displays and sales contests. Gain advantageous shelf space. शेल्फ स्पेस क्या होता है, जो आपके शोरूम में या दुकान में कौन सा प्रोडक्ट किस जगह पे रखा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड शेल्फ स्पेस. इसको हम लोग एक्टिविटीज में विल डिस्कस इट. To increase store traffic means movement of products. कितना स्मूथ हो रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, जल्दी जल्दी बेच रहे हैं, ब्लॉक नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. इम्प्रूव रिलेशनशिप विद डीलर्स. जो एक्टिविटीज हम करते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए, तो डीलर्स ऑल्सो गेट बेनिफिट्स. तो इट इम्प्रूव्स द रिलेशनशिप. वो कैसे होता है, वी विल सी इन द एक्टिविटीज. टू ब्लॉक कंपिटिटर्स मूव्स. डेफिनेटली कंपिटिटर को तो हराना है हमको. मोटिवेट सेल्स फोर्स, क्योंकि ये सपोर्टिंग सेल्स फोर्स के लिए ये सपोर्टिंग एक्टिविटी होता है ना. ये एक्टिविटी होने से सेल्स अगर बढ़ता है तो सेल्स फोर्स गेट मोटिवेटेड. टू सप्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स. जो एडवर्टाइजमेंट हमने किया, पर्सनल सेलिंग किया, उसको ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है बाय सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज. एंड डिफ्लेक्ट कस्टमर्स अट्रैक्शन फ्रॉम प्राइस. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हिडन एजेंडा ऑफ सेल्स प्रमोशन. कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट आपका अच्छा है बट द कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ही थिंक्स इज द प्राइस इज वेरी हाई. तो यहाँ पे अगर कोई सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज यहाँ पे आ जाती है तो वो प्राइस पर से ध्यान उसका हट जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, टू डिफ्लेक्ट customers attraction from price. How this happens we will discuss when we discuss the sales promotion techniques. So there are two kinds of sales promotion. Number one, activities intended to educate or inform the consumers, and those intended to stimulate the consumers, educate or inform, and intended to stimulate the consumers. These are called consumer sales promotion. मतलब कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उसके लिए जो एक्टिविटीज होती है, दैट इज कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन. सेकेंड वन इज डीलर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो रिटेलर्स हैं. एक्टिविटीज टू इंक्रीज द इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म ऑफ डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. दीज आर कॉल्ड dealer or distributor sales promotion devices. Clear? There are two types of sales promotion. Now to revise all what we have studied till now, sales promotion is all the activities
done to promote the sale of product or goods other than advertising, publicity, and personal selling. Clear? Secondly, ये दो तरह का होता है. One is customer sales promotion, other is dealers or distributor sales promotion. Now, what are the techniques of sales promotion? Customer sales promotion का हम लोग पहले देखते हैं. The first one is free samples. You must have seen, if you go and buy some product, उसके साथ में एक छोटा सा सैंपल पाउच या पैकेट आता है किसी और प्रोडक्ट का. That comes for free. So the quality, the design of the packet, everything is same. जो कि हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्ट होगा उसके जैसा ही देखने में होता है. साइज छोटा रहता है because it is distributed free, so that you use it and get accustomed to the quality of that product. You can take the example. अगर तुम मूवी देखने जाते हो तो क्या होता है, किसी दूसरी मूवी का, फोर्थकमिंग मूवी का ट्रेलर आपको दिखाया जाता है. दैट इज फ्री. उसके लिए आप पैसा नहीं, अगर आपको बोलना पड़ेगा ट्रेलर देखने के लिए आप पैसे दो, यू आर नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट. आप कोई और मूवी देखने जाते हो, फ्री में आपको ट्रेलर दिखा देते हैं. तो सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए यू बाई सम प्रोडक्ट, साथ में एक छोटा सा सैंपल आपको मिलता है कि आफ्टर यूजिंग दैट इफ यू लाइक, you will be a customer of that product, you will be a purchaser of that product, and at the same time you will also refer it to others. तो एक हो गया फ्री सैंपल्स. जैसे अभी जियो ने किया था, फ्री में बांट दिया सबको सिम. उस समय कोई पैसा नहीं लगा. इट वाज जस्ट लाइक अ सैंपल, सबको बांट दिया. नाउ everyone is a Jio customer and they are very well charging for it. तो इसी तरह से प्रोडक्ट्स के लिए सैंपल्स देके अट्रैक्ट कस्टमर्स. सेकंड इज कंटेस्ट्स. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सो मेनी एक्टिविटीज. अगर आप मॉल्स में जाते हैं तो देयर आर सम क्विज और सम कंटेस्ट, सिंगिंग कंपटीशन, दिस दैट, वो होता रहता है, एंड यू गेट अ प्राइज फॉर दैट. और उसमें है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द कंटेस्ट. इससे क्या होता है, कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड एंड दे गो फॉर द प्रोडक्ट.